कट्टे वट्टे निकाल लिए सबने अपने कट्टे वगैरह निकाल लिए हैं कि आओ निकलो भैया, कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठेका आ गया भैया। I am more concerned with who is ruling and how the F they get to suck my blood to fund the endless schemes and I get punya. मैं तो ये कौन है वैसे? योगेंद्र यादव। मोदी जी थप्पड़ मारते हैं अंडे से, हार्डर डैडी। अब ये इसने किया है कुछ तो भी, क्या किया है इसमें? ये वैसे तो ये आदमी पागल है। Yes, thank you. Good disclaimer. निर्मला जी गाना गा रही थी, ये जो थोड़े से हैं पैसे उन पर टैक्स लगाऊं मैं कैसे। अच्छे से काट दिया गया है। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह। It's a big question which people have been debating over. अभी middle class है क्या exact? क्योंकि टेक्निकली तो निर्मला समन is also man. I am a middle class woman. I also understand your pain. आगे भी कटेगा इसकी गारंटी है ही। पहले श्रीशर आदरणीय च से चाय बनाते थे, अब वो च से कुछ और बनाते हैं। आय हाय। चोमू। So this is a good move. दिस इज अ गुड मूव। दिस इज सबसे बेस्ट यही है जो मुझे पूरे बजट में सबसे बेस्ट चीज लगी, वो यही लगी है। थैंक यू निर्मला जी। कुछ भी बोल दो, निर्मला जी मत बोलो। So मामाई के सॉफ्ट 4000 लोग एक साल में एक कंपनी में काम कर, ये क्या चोमू, क्या कैलकुलेशन है? Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein. हम मोदी जी की शक्ल देखते हैं, हमारा निकल जाता है। Budget should be consumed as memes because it is kind of pointless. हमारी जो लगती है वो एकदम स्टेबली लगती है। अब देखिए इसमें डालेंगे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा और, क्या है ना, इसकी खुशबू से ही सब लोग खुश हो जाते हैं। क्या बात है। देखो डिसेंट ऐसे ही चलता है, डिसेंट ऑलवेज सेल्स मोर, इसीलिए हम डिसेंट की दुकान खोलकर बैठे हैं। Hello nerd friends and welcome to another episode of Decent की दुकान, where decent people Wait, I was not even sorry. One more time. Sorry. again. Again. Hello and welcome to another episode of Decent की दुकान, where decent people Are doing descent? in times of dissent. हाय अरे कर लिया, अरे बड़ी सा अच्छा। यस थोड़ा स्मूथली करना पड़ेगा बट वेल डन हो गया, खत्म शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यही करना था हमको। No, but you have to forgive me because I was distracted by your new haircut. Oh, of course. Thank you. Like, I lose age when I lose hair. Yes, I you lose do. age. Yeah. You do. Yes, you do. Yeah. अब लग रही हूँ मैं तेरे से बड़ी. Yes, nice. So it is a superpower I have. So And by the way, in Decent की दुकान में you're looking so decent, yeah. Hi. A decent also is there. Decent. We should add this line to our tagline then. नहीं but है ना decent, पहले decent शुरू किया ना. Tagline. No, but so chat is saying Meghwalkar.
That's a good start. That's a good start to our episode. And friends, without further ado, let me introduce you to our guest for today. He's our fellow reactionary who has already been on my channel. Say hello to Arpit. Hello, Arpit. Hello, Hello everyone. Hello, welcome back to my channel. Yeah, after a month. After a month. Yeah, it's not been long, so it's okay. No, after a month. It's okay. इतना भी मिस नहीं लेकिन किया. तेरे को पता है, लेकिन सुनना पता है तेरे को, आज अर्पित के आने से there is one thing that the viewers of Dissent की दुकान will know or will understand is the chaos that we are and the shant person that he is. That's there's true. the very very wide Sargasso difference is going to be visible between us and him, because he's like this all chill, all cool bro, and we are just us. That's true. And the thing is, I just realized something, Medusa, in the first so we have been like half an hour से हम यही चोमुगिरी कर रहे थे, technical whatever, right? I think हमने अर्पित को already drain कर दिया है. मैं तो थक गई भाई. I'm so sorry. I like बेचारा set हो गई आगे की. ऐसे बैठ के अभी किताब पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, कुछ तो पढ़ रहा था. Like poor thing, and Tone set हो गई. and we are like assaulting his senses. Yeah. No, I had made a request to Arpit, which he is going to do us goodbye. So, guys, we are reacting to this shit, which you can see on the side. This is an actual post by MyGov.in. Guys, this is true. MyGov India has tried to explain the union budget with a twist through memes, apparently, because अब यही करना बाकी है, so कर ही लेते हैं ये. तो also meme में भी जो बिल्ली लगाया, that has never been a meme. The grumpy cat has been a meme. This is not a meme wala cat. This is some random cat that they have put on. they got like a very random cat. Yeah, that's true. Also, that illustration with Nirmala Sitharaman is a little bizarre. Yeah. It is, because that's not a meme. It's just an illustration. You put a meme of Nirmala Sitharaman. Also, we With like don't have a green note, do we? Sorry? We don't have a green note. No, we don't. Yeah, वहाँ पे ये रुपीस ग्रीन document है. लगाया डॉलर का. है डॉलर का डॉलर का लगाया. निकाल के उन्होंने रुपी का सिंबल चिपका दिया वहाँ पे. क्या कितने आलसी लोग हैं यार ये लोग. मतलब ये एक सेकंड, ये एडिटेड है क्या? ये सच में ये सच मतलब में है. लाइक देखना, सच में है, उन्होंने सरकारी MyGov वेबसाइट पे in वो है. सरकारी वेबसाइट पे ये. सॉरी, सरकारी through memes. account. या लुक एट दिस. मैं बताएगा ना एक एक करके. मैं तू जैसे जैसे बोलेगा ना मुझे बजट का रिव्यू और देगा, the वैसे memes वैसे are मैं like गवर्नमेंट का so- बताएगा. The memes are so old. That Oh first my meme, that God. baby is 25 years old now. Yeah, The बच्चा. Medusa, जो ये सक्सेस बेबी वाला. don't pre-react. रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का बुक्की नहीं करने का. Again, see, don't pre. You scrolled and I saw it. It's your fault. Arpit wanted you to first start off by telling us what was this budget? Like क्या point था इसका? ये पूरे एक्सरसाइज का क्या point है? मैं ना अभी आपके साथ लाइव आने से पहले सोच रहा था कि एक क्या मतलब स्टार्टिंग लाइन बताऊं जो थोड़ी कैची हो बजट के लिए. तो एक चीज दिमाग में आई कि ये बजट सारा एन है. एन निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया, नीतीश नायडू इनके लिए बजट बना, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मिडिल क्लास को मिला है नथिंग. तो ये बजट बिल्कुल मतलब इसमें सारा मिडिल क्लास के लिए कुछ है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट आया है, थर्ड टर्म है, कुछ ऐसा होगा कि अगले 5 साल सरवाइव करे गवर्नमेंट. ये सोचे कि भाई हमने ये बजट दिया है, तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दे दी, अब तुम हमें वोट देना. क्योंकि इतना बड़ा झटका लग गया भाई कि इलेक्शन भी लूज हो गए, जीएसटी कट गया, सीट भी कम हो गई, सब कुछ हो गया. बट वही चीज के जो लोग अभी भी ये कह रहे हैं, शायद मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब आपकी बातों को अभी से ही पहले बता रहा हूँ कि जैसे 7% ग्रोथ रेट है, 6.5% ग्रोथ रेट है. तो मैं काफी पॉडकास्ट सुन रहा था, काफी और भी चीजें देख रहा था. तो उसमें अश्नीर ग्रोवर की मैंने बात सुनी. हाँ. और वो मैंने बात इसलिए सुनी क्योंकि उन्होंने मेरा ना वीडियो लाइक किया 3-4 बार लगातार 3-4 वीडियो. तो ना मैंने कहा एक बार मैं देखता हूँ कि लेटेस्ट क्या चल रहा है इनका. तो वो बजट पे ही उन्होंने बात की. ये सेड कि अगर गवर्नमेंट ये बजट ना लाती
या बजट ही ना लाती तब भी इंडिया 6-7% पे ही ग्रो करता। हमें क्या करना था ऐसा कि इंडिया 6% 7% से 12% पे चला जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं इस बजट में। तो मेन चीज तो ये है कि जो भी मिडिल क्लास सोच रहा था कि हमें मिलेगा, क्योंकि आप देखो ना लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है हर कोई गाली दे रहा है, कोई भी Which we हो will चाहे ये वाली बात राइट this point that you made ना right now कि अगर कुछ नहीं भी करते तो भी 6-7% की ग्रोथ रेट पे भारत चलता ही रहता। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव, जब मेरी भक्तों के साथ, यूजुअली सीनियर भक्तों के साथ बातचीत जब होती है ना, ओके हाँ सीनियर भक्त कुछ मेरी जिंदगी में है, सीनियर भक्त जिनको मैं वैसे अचुब्बे नहीं बोल सकती, तो उन लोगों का सुनना पड़ता है ना। तो उन सीनियर भक्तों के साथ जब बातचीत होती है तो उनमें से एक भक्त ने बोला था कि देखिए हमें क्या चाहिए, हमारे तो हमारे तो पहले मैं जाता था इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा फोन से जमा हो जाता है। पहले मैं गैस लेने जाता था, लाइन में खड़ा रहता था, अब गैस हमारा घर पे आ जाता है। सो फॉर देम दिस इज डेवलपमेंट, एंड व्हेन आई टेल देम कि दिस इज या फिर यूपीआई इज आल्सो एन एग्जांपल व्हिच दे यूज, एंड व्हेन आई से कि ये नेचुरल एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रोसेस है जो हमेशा होगा, जो होगा ही, घर देशों में कंट्रीज में होगा ही, नेचुरली टेक्नोलॉजी प्रोसेस करती है, प्रोग्रेस करती है, उस हिसाब से ये दिस इज नेचुरल थिंग्स व्हिच विल हैपन, इट विल नॉट, दीज थिंग्स विल नॉट स्टॉप। पहले ऐसा होता था, अब ये आपको ये सोचना चाहिए कि पहले इतने बच्चे मरते थे, आज कितने बच्चे मर रहे हैं भुखमरी से, पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, आज कितनी, वो सब आपके लिए मैटर नहीं करता। पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल देने जाता था, लाइन में लगता था, अब नहीं लगना पड़ता। दैट इज योर मुद्दा फॉर ये व्हेन योर सन इज अनएम्प्लॉयड व्हाटएवर। ओके, सो हाँ दिस इज, ये तो वही बात हो गई कि आपका ग्रोथ नॉर्मल होता, आपको 6 को 12 बनाना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये तो वही बात होगी कि पहले हम खेत में हगने जाते थे, अब हम अच्छा हमारे लिए वॉशरूम बन गया। ये तो टट्टी है। थैंक यू। मतलब ऑब्वियसली तुम खेत में भी थोड़ी हगने जाओगे, अब तो दुनिया नहीं, कोई नहीं हग रहा वहाँ पे, जो जिस बेचारा मजबूर है वही जा रहा है वहाँ पे। ये तो कोई बात नहीं होती। अभी अब और 10 साल दे दो मोदी जी को, वो हैंड शावर का भी एक स्कीम लाएंगे फिर, और फिर लोग प्रेज करेंगे कि अरे हमारे जमाने में हाथ से धोना पड़ता था, अभी मोदी जी ने हमको हैंड शावर दे दिया वगैरह। हम मोदी जी की शक्ल देखते हैं, हमारा निकल जाता है। पहले हमको कब की दवाई खानी पड़ती थी, अब नहीं खानी पड़ती है। How many minutes into the podcast? 8 minutes into the podcast, poop talk starts. Just अर्पित भी शुरू हो गया. And you have to give it to me. I did not start it this time. Yes. This time it was not me. Yes. One thing we need to understand about every budget that is presented, and I think one thing is very clear. Budget is a political statement which is for political means. Okay? उसके beyond कुछ होता नहीं है. Budget is promises, like essentially allocations होता है, right? So I keep explaining this to people very nicely कि देखो budget क्या होता है, कि ओ यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ पे इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, it's future, right? So basically through the year इतना spending हम करेंगे, right? And part B would be कि हमको पैसा कहाँ से आएगा, तो हम इतना टैक्स करेंगे, इतना टैक्स करेंगे, इतना लोगों को टैक्स करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से, अब उसको बैलेंस करना है, and that is the budget. All of it is in future tense. Okay, my thing is that if you look at any sort of budget, like any for last not just 10 years but even a little before that, but especially the 10 years, Modi ji and his government winter session आते ही पूरा पलट देते हैं. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. लाइक रिवाइज्ड बजट, इतना मजे से एकदम रिवाइज्ड बजट डाल देते हैं ना वो विंटर सेशन में. तो लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. डू यू रिमेंबर मोदी जी ने एक बार मनरेगा को गाली मारी थी? Right in the beginning, like 2015 में, that it is the UP's biggest failure and all. उस साल in the budget they cut their funding, right? मनरेगा का फंडिंग, right? तो उनको बस एक चंद महीने लगे कि उनकी लग गई है बेसिकली. इन्होंने ऐसे फंड्स निकाल लिए, कुछ प्लान नहीं किया था. Literally realized in like a few months that big disaster. In winter session they put the funding back. In fact they increased it, right? So उन्होंने promise कुछ किया था and 6 months later it changes. You will see this happening every year.
तो बजट हैज मेड फॉर अ फ्यू रीजंस. एक, सबको उछल कूद करना है इसके बेसिस पे, मतलब एक तो हम ये देंगे वो देंगे व्हाटएवर, कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं. सेकंड इज मिडिल क्लास लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ओ इनकम टैक्स इतना भरना है उतना भरना है व्हाटएवर. थर्ड इज स्टॉक मार्केट. स्टॉक Right. market is the third reason, right? That is the whole and sole reason for the budget. So what you see here is actually very accurate. Budget should be consumed as memes because it is kind of pointless. वैसे इसमें बस एक चीज है, आपने बताया ना कि I like how you आपने- arrived at it. Yeah. आपने बोला ना कि सारी स्पेंडिंग फ्यूचर में होती है. स्पेंडिंग सारी फ्यूचर में होती है बट टैक्स प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हो जाते हैं. वो भी एक है. करेक्ट. ऑल्सो लाइक प्रेजेंट टेंस में वो रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर देते हैं बट Right. स्पेंडिंग जो, सो देखो लाइक अगेन लाइक यू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे कि हमको एक पूरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि ये रेवेन्यू कलेक्ट इतना हो रहा है, वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा और हम उसको उतना स्पेंड करेंगे. दैट इज द कंप्लीट बजट. उनका रेवेन्यू उतना ही आता रहता है बट ये एलोकेशंस चेंज होते रहते हैं. तो बेसिकली दे ब्रेक देयर प्रॉमिसेस एवरी 6 months, राइट? Right. एंड दे डोंट गिव अस एनी रिलीफ. वो रहता है, वो स्टेबल रहता है. रेवेन्यू आने का सिस्टम स्टेबल, हमारी जो लगती है वो एकदम स्टेबली लगती है, राइट? बट उनका जब आता है ना कि उनको जब खर्चा करना है एक्सेट्रा, वो गोल पोस्ट इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं उनके. हाँ, कभी वो अदानी के उसमें चला जाता है कि लोन वेवर देना है, कभी अंबानी की शादी में चला जाता है. सो गाइज हियर्स द थिंग, डिटेल्स वगैरह बजट के अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट विच आई सेड कि एलोकेशन इतना करेंगे डजंट मैटर. कंप्लीटली फॉरगेट इट, डोंट वरी. इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स देन यू शुड बी हैप्पी बिकॉज जैसे बिहार में अगर तुम ब्रिज बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कोई आदमी हो और या फिर तुमको कोई कंपनी चलाना है वहां पे, तो तुम्हारी चांदी है. बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक इट मैटर्स रियली. ओके, तो देखते हैं क्या तारे तोड़ रहे हैं हमारी गवर्नमेंट अभी. इंटर्नशिप बिहार में ठेकेदारों के मजे आ गए. हाँ बिल्कुल. ये देखो, ये मीम है आउटडेटेड एज which is Outdated as, yeah. This kid is like 30 years old. Yeah, this is like elder millennials भी ये मीम नहीं यूज करते आजकल. I know. बट हमारे माईगव वाले कोई ब्यूरोक्रेट ने बैठ के कर दिया. Remember, मेघना सुनना, तेरे को 9gag पता है क्या होता है? Yes. 9gag is like the original OG place for memes, right? Yes, absolutely. I had a viral meme on I had 2 viral memes. One was about the bad guy. There was a bad guy meme जिसमें वो एक टोपी पहनता है, then he has a weed ऐसे करके. तो वो मैंने Adobe के लिए बनाया था कि अब जरूरी टाइम पे अपडेट मांगता रहता है. So bad guy meme that had like viral. Anyway, point is the second viral meme which I had on 9gag was of this guy, and that was in 2000 जब मैं स्कूल में थी तब बनाया था शायद 11th or 12th में. This is that old. Yeah. अरे this is that success kid is what he's called, right? Success kid, I think. Success kid meme. But Arpit, do you know this meme? यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये मीम, टू बी ऑनेस्ट. देखो, बच्चा है, बच्चे तुम्हारा बच्चा है. देखो तो, but do you agree with this meme? Which is internship मतलब opportunities. ये ठीक स्टेप तो ठीक है देखो, और अच्छी स्टेप है कि मतलब यूथ के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है. बट इसका एक दूसरा साइड भी है कि जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह में ये स्टार्ट मतलब अगर इनकी, क्योंकि उसमें स्टार्टअप्स भी आएंगी, बाकी कंपनीज भी आएंगी, तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब उसमें एक अनट्रेंड इंडिविजुअल को एम्प्लॉय किया जाएगा, उस पर कॉस्ट डाली जाएगी, उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा, फिर उससे सर्विसेज ली जाएंगी जिसमें वो शायद स्किल्ड ना हो, तो कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं. मतलब कहा जा रहा है कि उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक तरीके से, जैसे हम आर्टिकलशिप में करते हैं. जो बहुत सब सेम वही एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट आता है, सीए स्टूडेंट किसी प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर आता है, इंटर्नशिप करने आता है, पर उसे सब नहीं पता होता, उस पर पैसा खर्च किया जाता है, टाइम खर्च किया जाता है, ठीक है, फिर उसको पैसा दिया भी जाता है. अभी ये एक अनड्यू प्रेशर बन जाएगा कंपनीज पे, इस सेंस में कि उनको ऊपर से कुछ नहीं मिल रहा है. उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है टैक्स में, उनको किसी भी चीज में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. तो ये उन कंपनीज के लिए अनड्यू प्रेशर है. बट ये एक स्टेप मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है, क्योंकि उनको स्लेव लेबर मिल रहा है ना. स्लेव लेबर कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. बट ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं कहूंगा कि ये स्टेप अच्छा है, क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं अब्रॉड में 15, 16, 17
साल के लोग भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, पार्ट टाइम स्टार्ट कर देते हैं, सो दे गेट स्किल्ड, उन्हें पता है पैसा कैसे कमाना है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हमें ये नहीं पता पैसा कैसे कमाना है। 30 साल का वो आदमी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, वो ढोर बन के अपने माँ बाप पे पड़ा रहता है कि मेरा घर चल रहा है, मैं हूँ। अभी एक वीडियो भी आ रही थी किसी महाराज के यहाँ कि जी मैं कुछ नहीं करता, मैं बस राधे राधे बोलता रहता हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं और मुझे काम नहीं करना कुछ, मुझे अखंड भारत बनाना है। जब तुम 30 साल तक ऐसे ही पड़े रहोगे, घर वाले गाली बक रहे हैं, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं पैसा कैसे कमाना होता है। यहाँ के लोगों को, अब्रॉड के लोगों को पैसा कमाना आता है, भले ही वो बिजनेस ना कर रहा हो, बट उसके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उस सेंस में मुझे ये अच्छा लगता है किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की हमारे पास अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेप्स हुए हैं, डीमोनेटाइजेशन कर देंगे, जीएसटी ले आएंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। सो लेट्स सी। बट एक बताओ मुझे अर्पित, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हाँ, बोल रहे कि 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज, राइट, ओवर 5 years। तो इफ यू डिवाइड 1 करोड़ बाय 500, which is exactly what I was doing, right 20,000, you want 20,000 people to work in one company। right उसको आप अगर डिवाइड कर दोगे और 5 से तो कितना, 4,000 हो जाता है, नहीं 4,000 लोग एक साल में एक कंपनी में काम कर। ये क्या कैलकुलेशन है? Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, तब भी कोइंसिडेंटली हम निर्मला सीतारमन के ऊपर ही कर रहे थे वो वाली रिएक्शन वीडियो। उसमें ही मैंने आपको बोला था कि इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठाना चाहिए, सीए बिठाना चाहिए, कोई इकोनॉमिस्ट बिठाना चाहिए जिसको एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो, फाइनेंस की नॉलेज हो। मतलब तुमने बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी। So no, एक सेकेंड, someone had also talked about how it is going to be, जैसे फॉर एग्जाम्पल द 500 टॉप कंपनीज, उनके कितने एवरेज एम्प्लॉइज होते हैं? आई थिंक इट वाज लाइक अराउंड 1,70,000 समथिंग, तो समथिंग, तो वो होते हैं उसमें ये 20,000 का जो एक्स्ट्रा वेट है विथ, सो समबडी हैड आल्सो डन दैट काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन कि ये एक एक्स्ट्रा वो होगा और प्लस समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव देम एनी सपोर्ट फॉर। मैं वही बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी अनट्रेन्ड इंडिविजुअल के लिए, उसको पैसा देना पड़ेगा, फिर सिखाना भी पड़ेगा, तो उस सेंस में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन आ जाएगा कंपनी पे। बट अगर देखा जाए यूथ के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन वाइज अनरियलिस्टिक है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। बड़ी बड़ी बातें हैं कि आप जैसे हाईलाइट भी अगर रखा है 1 करोड़ यूथ, 500 टॉप कंपनीज, 5,000 स्टाइपेंड, ग्रांट ऑफ 6,000, तो वो हाईलाइट तो कर दिया और लोग पढ़ के बस वही व्हाट्सएप अंकल जैसे आपके सीनियर भक्त अंकल हो गए, 1 करोड़ युवाओं को बच्चे का रिएक्शन बेसिकली सेम रिएक्शन। ये स्टूडेंट और यूथ को रिप्लेस करके भक्त अंकल लिखना चाहिए वहां पे। मोदी जी ने पता है 1 करोड़ यूथ को जॉब दे रहे हैं, 500 टॉप कंपनी में दे रहे हैं, वो कंपनी वाले they are going to use this number to boost their unemployment वाला numbers। जो ये बोलते रहते हैं ना 12.5 करोड़ नौकरियां दी है, 12.5 करोड़ नौकरियां दी है, कौन सी 12.5 करोड़ नौकरियां आपने दी है यार? I really need to know where that number of 12.5 करोड़, you know what they include in it? So they include MSME के लोन दिए ना उन्होंने, वो भी इंक्लूड करने लगे उसमें। हाँ, also I have heard, I think it was a News Laundry episode or was it a Wire episode? Somebody had done this story where they have actually calculated the homemakers, जो हाउसवाइफ्स हैं घर में, जो घर पे काम करती हैं, जिनको पैसा नहीं मिलता है, but then they are working, so they have counted them in the labor force. They have counted them as working people. I mean, can you imagine the level of धांधली स्टैटिस्टिकल लेवल पे? मतलब जो एथिक्स हमको कॉलेज में सिखाई जाती है रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइम पे कि कौन सा डेटा आपको कैसे यूज करना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन लीड टू व्हाट इज डेटा फजिंग, डेटा, आई थिंक इट्स कॉल्ड डेटा स्क्रैपिंग और क्या, समथिंग, बेसिकली लाइक मरोड़ोइंग द डेटा इन सच अ वे दैट इट गिव्स यू द रिजल्ट दैट यू वांट। Because technically somebody who's working at home as a homemaker is working. They are not getting paid, but they are working. So you count them in your labor force. कि आपका इतना बड़ा labor force मतलब क्या है? जो काम कर रहे हैं मतलब क्या है? जो employed हैं? See, no. I think you're no. Okay, so you're I think confusing labor force with employment, which is also like such a. I am not confusing. They have done it. They have done it. I am not confusing. Yeah, I'm not. मेरे को पता है, but they have done it. That's what they're doing. कि उसको labor force को भी employment के साथ आप add कर लो.
तो हो गया एम्प्लॉयमेंट, काम तो कर ही रहे हैं लोग। अरे भाई ये गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम इन्फ्लुएंसर हु बेसिकली टोल्ड पीपल 12 करोड़ नहीं बट ये शरण नहीं सेलिंग व्हाट लेवल Delulu is this? Like, नहीं but you know the one thing about Shri Sir Adarniya is that he like his expertise growing up was chai banana, right? then he gives a speech later where he's explaining this amazing biogas का चाय बनाने का टेक्निक, which is like गटर के ऊपर एक कंटेनर रख के एक पाइप डाल दिया और उसमें से गैस निकल रहा है और वो चाय बना रहा है उस पे. What do you expect from this person? Like, I mean, like, at this point, like, I am also like thinking the reason why I wanted to do this episode in DKD and not on my live stream was because hilarious. Like, everything we look at is hilarious. Yes, for example, also because you said chai, I have another idea. Because you said I have another idea and I have a one-liner. पहले श्री सर आदरणीय च से चाय बनाते थे, अब वो च से कुछ और बनाते हैं. आय हाय चोमू जैसे चौकीदार चौकीदार चोमेंद्र नरेंद्र मेकर ऑफ चोमेंद्र. ये एक गजब का मीम जो बहुत मिसप्लेस्ड है एक्चुअली. 10 लाख ओके बट ये भी ठीक है. नॉट सीन मिर्जापुर एग्जैक्टली. ये रॉबिन का जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे, ही बेसिकली इज लाइक दिस डिसमिसिव. ये भी ठीक है विच इज ए चलो ये भी ठीक है. चलो यार अब ये भी हो गया यार टाइप्स. What is this? चलो. Oh God. It's like they did a Google search memes and these are the things that popped up and that's what they did. No, it's basically मुझे पता है इन्होंने क्या किया है. IT सेल से कंसल्टिंग किया. हाँ, अमित मालविया को बोला कि अमित मालविया एक फोल्डर भेज दे ना वो मीम वाला. फिर वो मीम फोल्डर भेजा और फिर ये मीम फोल्डर में ये ना अभी मजा आएगा ना भिड़ू टाइप वही तो रिस्पॉन्सेज आते हैं ना. लाइक अगर केजरीवाल अरेस्ट हो गया और उसको बेल नहीं मिला तो भक्त क्या यूज करते, अभी मजा आएगा ना भिड़ू. यही तो होता है ना. तो अमित हाँ ये मीम पेजेस पे ये होता है. हाँ एग्जैक्टली. सो दीज आर ऑल भक्त का मीम्स. सो लाइक बेसिकली वही फोल्डर उठा लिया अमित मालविया से और फिर ऊपर बजट का इंफॉर्मेशन डाल दिया और रैंडम मीम डाल दिया उसके नीचे. बस वही चल रहा है. Like ये देखना, e-vouchers for loans up to 10 lakh for 1 lakh students annually with 3% interest subvention for higher education. And the meme is अभी मजा बट इसमें इस वाले ये जो अभी जो पॉइंट है इसमें कौन से मतलब किस तरीके की एजुकेशन कवर्ड अप होगी? क्या सारी एजुकेशन मतलब बीट इंटरनेशनल या नेशनल कॉलेजेस में भी कुछ कवर्ड है सम स्पेसिफिक? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में. इन हाउस कॉमर्स वाला तू है, तुझे बुलाया ये सब बोलते नहीं मैंने ये वाला पॉइंट मुझे एक्चुअली पता नहीं है इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ा जेनरिक लिखा हुआ है कि लोन्स अप टू 10 लाख फॉर 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली. क्योंकि लोन तो अभी भी मिलता है ना. अभी 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलता है. What's the like 1 lakh students कैसे पता करें किसको देंगे किसको नहीं देंगे? Like first come first वही राइट वही मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि 7.5 लाख का अभी तक लोन मिलता है जो मिलता है मॉर्गेज फ्री लोन. उसके ऊपर एजुकेशन लोन जब लेना होता है उसके लिए कुछ ना कुछ मॉर्गेज देना पड़ता है. तो उतना तो है. अभी ई वाउचर्स का जो भी है फॉर 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली विद 3% सबवेंशन. यार वही चीज है. ये तो बड़ा जेनरिक सी चीज है कि ये मिल जाएगा. आई डोंट थिंक ये इम्प्लीमेंटेशन वाली कुछ चीज मुझे इसमें लगती है. सही बताऊं तो कौन कवर्ड होगा कौन नहीं होगा मुझे नहीं पता. ये वाली स्कीम्स मुझे सिर्फ ऐसी लगती हैं कि देखो एयरपोर्ट बनेगा वहां के सारा आसपास का जो एरिया है ना वहां के रेट बढ़ जाएंगे तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ना वो पहले खरीद लेते हैं वहां सारी चीजें. अयोध्या में वही किया राइट. तो ये वाली स्कीम मुझे उस तरीके की लगती है. Johnny Lever here is in the state of अभी मजा आएगा ना भिड़ू, right? But to get to that stage there is a stage that comes before that which is like समझ में तो आना चाहिए ना भिड़ू. तो ये तो लाइक ये समझ में नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा. बट आई थिंक स्किप कर दिया स्टेप थोड़ा सा. ये लास्ट वाला एंजल टैक्स रिमूव फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर. अब ये समझाओ मुझे ये क्या है एग्जैक्टली? बेस्ट. ये सबसे बढ़िया चीज हुई. एक्चुअली ये स्टार्टअप्स पे लगता था
जो इतने भी स्टार्टअप्स होते थे ना, उनको जब वो फंडिंग लेते थे तो उस पे ये शायद प्रणब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रणब मुखर्जी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है, जब आप किसी से फाइनेंसिंग लेते हो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर, अगर कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ऊपर की फाइनेंसिंग मिलती है तो उस पे शायद 30% के अराउंड टैक्स था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं एग्जैक्ट देख के बता सकता हूँ, बट इतना ही था। तो वो उन्होंने, उससे क्या डिस्करेजमेंट होता था, काफी डिस्करेज हो जाते थे ये नए स्टार्टअप्स वाले फंडिंग वगैरह लेने में। तो ये बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि इसे हटाओ, तो ये स्टार्टअप के लिए अच्छी है। ये अच्छा, स्टार्टअप पे लगता है या किसी भी कंपनी पे लग सकता है? नहीं, स्टार्टअप्स पे लगता था ये एंजल टैक्स। तो दिस इज अ गुड मूव। दिस इज अ गुड मूव। दिस इज सबसे बेस्ट यही है जो मुझे पूरे बजट में सबसे बेस्ट चीज लगी, वो यही लगी है। फेयर इनफ। थैंक यू निर्मला जी। निर्मला जी थैंक यू। कुछ भी बोल दो, निर्मला जी मत बोलो। ये मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग की उपज है। Some mic is off. ये हमसे पूछ रहा है किसको लगेगा टैक्स, किस पे नहीं लगेगा। ये हमारा इन हाउस वाला कॉमर्स वाला बेकार है। So look at this one. 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. Women and girls is like वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बोलो। Horror movie. And it's the wrong usage of the meme. And the thing is, what schemes are benefiting women and girls? What schemes? Like, have they specified what schemes? नहीं, अरे ये नहीं, तो वो मीमिफिकेशन के लिए था ना, मीमिफिकेशन के लिए था। वो डिटेल्स में मत जाओ आप, मीम पे कमेंट करो। वो स्पेसिफाई करो, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। इसमें वो स्त्री से डर रहा है। तो यू आर सेइंग दैट वी आर दीज हॉरिबल क्रीचर्स। डरना तो चाहिए, मुझसे तो डरना नहीं चाहिए। Anyway. ये मीम का मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया वैसे, कि विमेन एंड गर्ल्स लिखा हुआ है कि वो बोल रही हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, फिर पंकज त्रिपाठी की फोटो लगा रखी है। Exactly, या तो ये पंकज त्रिपाठी औरत है, जो कि नहीं है क्लियरली। The Stree that he refers to is from the movie Stree. That Stree is a horrible ghost. गजब बेइज्जती है। Right. So very misplaced on multiple levels. ये ऐसे वो बचपन में हमको मैच द फॉलोइंग होता था ना, ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए। सो अगर 10 होते थे तो 6 पता होते थे, राइट? बट द अदर 4 जो थे ना, वो रैंडम तुक्के लगाते थे फिर ऐसे ना, लाइक ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, व्हाटएवर। वो वही कर रहे थे। कुछ मीम्स दे वर लाइक हाँ ये सोच के रखा था, बट द रेस्ट ऑफ इट देर लाइक डाल दो कोई भी। ये मतलब along with economists, जैसे ये बोल रहा था ना, अर्पित बोल रहा था कि इकोनॉमिस्ट रखने चाहिए इन लोगों को अपने कंसल्टेशन में। They should also have some, people who know the internet, like Gen Z people और मीम वाला पीपल। ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन को रख ले यार, वही बता देगा कौन कौन सा मीम चल रहा है, कौन सा नहीं। इन्होंने मोदी जी से ही कंसल्ट नहीं किया, आधे जोक तो वही सुना देते, वो उन्हें ही रख लो। सबसे ह्यूमरस इंसान मुझे वही लगता है उनके पूरे बीजेपी में। बिल्कुल, प्रधान इन्फ्लुएंसर। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं असली मीम्स की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Like the actual funny ones which after this government made a meme thread, the people were like अच्छा तू meme बनाएगा, मैं दिखाता है। Playing this, center announces 26,000 crore for highway and road projects in Bihar. Contractors bridge chore. ये मस्त है। कट्टे वट्टे निकाल लिए सबने अपने कट्टे वगैरह निकाल लिए हैं कि आओ निकलो भैया, कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठेका आ गया भैया। Also, I absolutely love it that it says bridge chore. Not contractors. It includes the chores also. Wasn't there like yes, the contractors are going to have a lovely time, but the chores are also going to, and the existence of something called bridge chore. Chore. That is like mind blowing. Arey dude, there are so many insane stories that have been coming out of Bihar recently. So there, I'll just review a few which I remember off the top of my head. There was a gang which dug under a locomotive factory, dismantled an engine and stole it through a tunnel, right? There is a gang which stole a kilometer of road. Yeah. Because
I don't know. What are they going to do with the kilometer of road? What is going to happen? What do you steal in a road? What are they going to do with it? It's bizarre. Like, did they lay it in their house? Like carpet की जगह road use कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया. Then third is bridge. Yeah, there were literally I think 2 instances where आयरन का ब्रिज है डिसमेंटल करके उठा के चले गए. क्या स्टेट है ये? I will do you one better. There is a story in Bihar, from Bihar. A gang तालाब था, तालाब का पानी निकाला, उसमें मिट्टी डाला, उसमें घर बनाया, ओवरनाइट पानी लेके चले गए. बिहार में? Yeah. Wait, sorry. No, wait. पानी निकाला? They stole a whole lake. They took out the water, filled it with mitti, made a jhopdi on top of it, and just left. So they did this same thing with the road also. They removed the road, they put like mitti on top of it and planted like fake farms on top of it. Like, so again, over. I'm like, ये क्या है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? Like, seriously. Amazing. It's a parallel universe. Yeah. Absolutely. इसीलिए ये बीच में मुंबई वाले वो करते थे ना, मतलब मैं क्या कहते हैं, ऑफेंसिव नहीं होना चाह रहा कि ये बिहारियों को बाहर निकालो, यूपी वालों को बाहर निकालो. उन्हें डर रहता होगा कब अंटीला उठा के ले गए. कुछ नहीं पता. Randomly Antilla. So you know the thing, right? So if you ever go to Bombay, guys, here's a hot tip, right? You see Antilla ऐसे ना, तो ऐसे हो जाना, हाँ, ऐसे देखना Antilla को. It's basically Ambani showing you a middle finger like this. Middle finger. Yeah, it's shaped like this. And if you see my hand formation, this is how Antilla is shaped. If you look at it like this, okay. So so basically Ambani showing middle finger. So like if Bihar के लोग वहाँ पे आ जाएंगे, तो they will just like remove this and then it will be like this. So it's just like overnight ऐसे गायब हो जाएगा. Or maybe like this. अच्छा, मुझे बताओ guys, what do you feel about this special allocation to TDP and Bihar? Andhra Pradesh and Bihar. मजबूरी है, देना ही पड़ेगा. नहीं तो फिर गवर्नमेंट गिर जाएगी. बिल्कुल. शटअप मनी है मेरे लिए तो, मुझे तो शटअप मनी लग रहा है. शटअप मनी मतलब कि चुप रहो, अपना टाइम मत नहीं देखो, यहाँ बीच में कुछ बोलो. अच्छा, वैसे तुम्हें टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहेगा, तुम बस सपोर्ट में खड़े रहो हमारे. बेसिकली हफ्ता निकाल रहे हैं वो मोदी जी से. हफ्ता, बिल्कुल. That's a nice way to look at it. Like it's basically, you know what this is reminding me of? This is reminding me of Varun Grover line when he says that कि हमारी अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, हम बस खुश रहते हैं कि उनका कुछ बिगड़ गया. तो हम बस खुश है कि मोदी जी को हफ्ता देना पड़ रहा है. so अपनी जिंदगी गई हुई है, अपन लोग टैक्स भर रहे हैं, लेकिन चलो कम से कम मोदी जी को, टीडीपी नायडू और इनको नीतीश बाबू को हफ्ता देना पड़ा है कि चुप रहो भाई साहब, हम लोग को अपना काम करने दो, हेट फैलाने दो थोड़ा सा. Remember when Modi ji went to Bihar and he did this whole count कि कितना पैसा मिलेगा बिहार को, 1.2 लाख करोड़, सब चिल्ला रहे थे. क्या हुआ उसका? सही में मैं पूछ रहा हूँ, 1.2 लाख करोड़ बोला था वो उस टाइम, राइट? हुआ क्या? पर अब सिचुएशन अलग है, टेबल्स टर्न हो गई है. अब इनको मजबूरी है. अभी तो नीतीश कुमार ने एक बार आंख दिखाई तो बाबू साहब शांत हो जाएंगे. बट वही ना अर्पित, अगर ये ना ऐसे फॉर एग्जांपल इफ बजट डिक्लेरेशन वुड लीड टू द गवर्नमेंट क्रिएटिंग अ लायबिलिटी फॉर एग्जांपल, राइट, व्हिच इज, अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया कि जैसे हम देंगे बिहार को कितना 1 लाख करोड़, 26,000 करोड़ अभी दे रहे हैं, बट 1 लाख करोड़ देंगे, promise कर दिया. If that turns into a liability, right, where the central government just owes that money to that state no matter what, and if they don't pay it, the state can recover it with interest, right? If that be the case, then it makes sense, right? बट अभी तो तुमने बस बोल दिया है, तुम कब दोगे, क्या दोगे, कितने इंस्टॉलमेंट में दोगे, कितने सालों में दोगे, डजंट मैटर. तो उन्हें भी मतलब नहीं है, नीतीश कुमार को भी या चंद्रबाबू नायडू को भी मतलब नहीं है ना. उन्होंने कहा देखो भाई, हमने सरकार बनवा दी, हम साथ हैं, हमने तुम्हारे लिए पैकेज ले लिया, और हम भी दे ना दें, वो दे ना दें, क्या मतलब, पब्लिक का कट गया. That's true. And if something goes wrong in their own states, in their own state का government, they can say कि हमको सेंटर से पैसा ही नहीं मिला कभी, हम क्या करते हैं. हाँ, and also like already the government has been really bad at giving already allocated money, right? So see, there is another part to budget, which is
ठीक है तुमने प्रॉमिस कर दिया फ्यूचर में ये साल में खर्चा करेंगे राइट बट एक्चुअली व्हेन द नेक्स्ट बजट कम्स देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू चेक व्हिच इज कॉल्ड द आउटकम बजट राइट इवन इन दिस बजट यू कैन सी द आउटकम व्हाट दैट शोज यू इज ठीक है प्रॉमिस तो खर्चा कितना हुआ तुम बोल तो दोगे कि एलोकेट कर दिया मैंने 100 रुपए राइट बट लेट्स से इट्स अ वेरी सिंपल लिटिल थिंग अगर तुमको बोला है कि तुम चिकन की दुकान खोल रहे हो राइट स्पेसिफिक एग्जाम्पल चिकन की दुकान खोल रहे हो और 100 रुपए तुमने बोला कि लाइक योर फंडर इज सेइंग कि आई विल गिव यू 100 रुपीज ओपन लाइक चिकन शॉप सो यू ओपन इट बट देन लाइक यू जस्ट रियलाइज कि तेरे पास कस्टमर ही नहीं आ रहे राइट सो यू एंड अप स्पेंडिंग ओनली 60 रुपीज ऑफ द एलोकेटेड मनी राइट 40 रुपए तो खर्च ही नहीं कर पाए बिकॉज नहीं था कस्टमर नहीं था फुटफॉल नहीं था वट एवर राइट सो नेक्स्ट ईयर the sensible thing for the government to do would be acha last year I saw how much the footfall was so I gave you extra money 100 so next year I'll just give you 70 right तो मैं वो 30 रुपए कहीं और यूज कर लूंगा राइट व्हाट द परपेचुअल प्रॉब्लम विद दिस गवर्नमेंट हैज बीन इज कि तुमने 100 रुपए अभी दे दिए फिर विंटर में चेंज कर दिया फिर नेक्स्ट ईयर 120 रुपए और दे दिए फिर से विंटर में चेंज कर दिया और उतना ही कर दिया फिर नेक्स्ट ईयर 150 रुपए दे दिया फिर विंटर में चेंज करके वापस लेके आए डूड इट इज क्रेजी सम ऑफ द अमाउंट्स विद मनरेगा एंड एक्सेट्रा दैट दे हैव बीन प्लेइंग अराउंड विद आर इनसेन बिकॉज ऐसे तो नहीं होता ना कि तुमने अगर यहाँ पे पैसा डाला है तो कहीं से तो आ रहा है ना वो यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट कि तुमने कौन से स्कीम से काट के कहाँ से काट के ये इसको दे दिया राइट एंड दैट हैपेंस इन विंटर sudden Yes, meme sir. appears You you can defeat me I know what she can yes Nice, very nice. very nice very appropriate इसमें इस वाले मीम में एक दो फोटो मिसिंग है वैसे एक फोटो अश्विनी वैष्णव का होना चाहिए और एक फोटो धर्मेंद्र प्रधान का भी होना चाहिए हाँ नीट वाले का गधा कहीं का okay yes so friends what has been happening is that suddenly IT cell and BJP ke log are I don't know what is happening. You can tell me what is happening. But this is Ajit Bharti, their right-wing influencer, which Smita Prakash and Anand Ranganathan were very disappointed is not in the top list. पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है जितने भी ये कहते हैं कि हम राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी लोग हैं ये जब भी कोई वीडियो बनाते हैं किसी को काउंटर करने के लिए गालियां क्यों देते हैं मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि इधर की तरफ से कोई गाली दे रहा हो That's true. ये गालियां और वैसे ये बनते बड़े सोफिस्टिकेटेड कि भैया हम तो ध्रुव राठी के बराबर हैं ध्रुव राठी कौन है हम हैं जो हैं अगर तुम हो तो एटलीस्ट कंडक्ट तो वैसा रखो हर दूसरी वीडियो में गाली देते हैं लोग मुझे समझ नहीं आता इनको गालियों से इतना प्यार क्यों है No, so गालियाँ देना I don't know Medusa would be better person to tell me about this. I always thought that I used to curse a lot in general earlier, but I realized I was doing it because of a lack of vocabulary. एक तो emotions high होते थे and कुछ तो भी expression करना होता था, so those words would come out, right? Which is like गालियाँ पड़ती थी basically. मुझे लगता है गालियाँ तब भी आती है जब तुम्हारा vocabulary is not able to handle your emotions. So for example, फैक्ट्स है नहीं हाँ तो फैक्ट्स की तो छोड़ ही दो वोकैबुलरी ही नहीं है बात ही नहीं कर सकते लाइक मतलब सेंटेंसेस ही नहीं आ रहे दिमाग में राइट दैट्स द प्रॉब्लम विद द राइट विंग बिकॉज लाइक थ्री ब्रेन सेल थियरी विच वी कंटिन्यू विच इज एल्विश यादव 3 ब्रेन सेल्स आर परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस कि तुमको एक तो एक फैक्ट दूसरा फैक्ट कनेक्ट करने में इतना टाइम लग जाता है तो वो मुंह से निकलने में कितना टाइम लगेगा राइट सो लाइक वो जो वोकैबुलरी जो आती है ना कि एक तो पहले कनेक्ट करो लॉजिकली फिर उसको प्रोसेस करो फिर मुंह से निकलेगा वो नहीं होता है राइट तो दैट्स व्हाई वो गाली निकलती है बिकॉज इमोशंस तो भर भर के है राइट अगर फैक्ट्स पता होते तो वो इमोशंस थोड़े काम डाउन होके फैक्ट्स निकलते बट वो कभी फैक्ट्स होते ही नहीं है अभी आप इसमें ही देखो इसने इसी में अभी आप चौथी लाइन पढ़ो चौथी लाइन में ही आ गया है मैं तो गाली देती हूँ क्योंकि मेरे को मन करता है fair enough पर मैं ऑनलाइन या फिर इसमें मतलब इन अ पब्लिक फोरम वहां पे मैं यूज नहीं करती बिकॉज आई हैव स्टूडेंट एंड मुझे लगता है कि मुझे कम से कम स्टूडेंट्स के सामने मेंटेन रखना चाहिए बट अमंग माय फ्रेंड्स अमंग पीपल हु नो मी आई डू हैव अ वेरी फिल्दी माउथ Oh, absolutely. I've met you in person. I know. Yes, very. I'm sometimes very amused, Medusa. You are right when you say that कि जब गालियाँ usually तभी दिया जाता है like it in fact there's a very famous quote about it also that you use abusive words or you use cuss words when you are below par intelligence and you do not have the vocabulary to express what you want to say.
तो वो तो है ही. And there are in fact beautiful ways to insult somebody also without using such words. And why the right wing uses it, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि right now because गाली देना और उसको ना एक पावर के साथ एसोसिएट किया जाता है कि आप गाली कब देते हो जब आपको लगता है कि आप पावरफुल है एंड यू नो दैट यू कैन गेट अवे यूजिंग दैट गाली बिकॉज ऑफ कोर्स गाली देने से भी इंसान सामने वाला हर्ट होता है. राइट नाउ द पावर इज विद द राइट. सो ऑफ कोर्स दे थिंक कि हम लोग इस तरह से किसी को इंसल्ट करेंगे तो हम लोग को कुछ होगा नहीं, नथिंग विल हैपन टू अस. एंड सामने वाला डर जाएगा, सामने वाला डर भी जाएगा, सामने वाला इंटिमिडेट, क्योंकि यूजुअली जब कोई भी गाली देता है ना हमारा पूरा फोकस उस गाली के ऊपर चला जाता है रादर देन व्हाट अदर थिंग्स दैट दे आर सेइंग. तो अजीत भारती जी की ने अर्ज किया है, आई डोंट गिव अ शिट टू कांग्रेस, आई डोंट गिव अ शिट इफ कांग्रेस वाज इन पावर हाउ द बजट पढ़ा था आपने पहले भी पढ़ा था आपने how the budget would be. I am more concerned with who is ruling and how the F they get to suck my blood to fund the endless schemes and I get punya. Going by Ajit Bharti, that was probably what he wanted to write anyway. I was going to say divinity. Yeah, sure. Yes. Sure. Yes. You remove angel tax and introduce devilish increments elsewhere. This government is so cut off from reality that it believes people who earn 7 lakhs can survive in tier 2-3 cities, take care of their parents and send their kids to good school. Well, that doesn't happen. You can't control education fees, the cost of books and uniforms and so on. What exactly is middle class getting? Are your government schools up to any good? Are your government hospitals in small cities not in shitty conditions? You're basically asking everyone to come to metros for good education and health. Man has a point. Creating AIIMS, IITs and IIMs is great, but are they comparable to the old ones? Do you have the same quality there? So please tell me, where the hell should these honest taxpayers go? Maybe we should all collectively buy tractors and march to Delhi so that one fine day these stupid tax rates which are not in sync with inflation or spending are revised. यार ये कितना उल्लू का पट्टा आदमी है भाई. मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज नाउ. अभी ये बोल रहा है कि आर योर गवर्नमेंट स्कूल्स अप टू एनी गुड. इलेक्शन का टाइम क्यों नहीं बोलते ये लोग? आर योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन स्मॉल सिटीज नॉट इन शिटी कंडीशंस? तब क्यों नहीं बोलते? तब तो मुंह बंद रहता है इनका. ऑल्सो एक और ऑब्जर्व किया है स्कूल के लिए वोट थोड़ी देते हैं. वोट तो देते हैं अब्दुल टाइट है हॉस्पिटल के लिए. तो वही अभी क्यों लिख रहा है फिर? ये वही बात हो गई ना कि जब सेम जो मैं 2 वीडियोस में राहत इंदौरी का जो शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है. मतलब नहीं, बट वही चीज है कि डिड यू गाइस सी समथिंग इंग्लिश में है, लंबा सेंटेंस, लंबा पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा है. अरिजीत भारती इज नॉट एन इंग्लिश इन्फ्लुएंसर, ही इज अ हिंदी गाय. All of his tweets otherwise are mostly in Hindi. He writes in Devanagari. So you notice like he is... Yeah, okay. No, I did not. That was interesting. Okay. Yeah, and which I found very interesting because Ajit Bharti, I did not expect him to be so articulate in English because I have never seen him do this. I like this one. ये तो हमारे भाई मतलब भाई है हमारे भाई है. क्या हुआ? जॉब में मजा नहीं आ रहा, पैसे भी नहीं बच रहे, उदास हो, जिंदगी बुरी लग रही है. मैं तो क्यों? ये कौन है वैसे? योगेंद्र यादव? Karl Marx, sir. This is. Sorry. He's kidding. I just love this one. This is my favorite. मैं तो I told you so. मजा आ रहा है कॉर्पोरेट में काम करके और बनो कैपिटलिस्ट. This is a special meltdown. Modi government should go. I can't pay 30% income tax, 12% GST on almost everything I buy, 1.5 lakh road tax upon car purchase, 2 to 5 rupees per kilometer toll tax to Nitin Gadkari, and 12.5% to 20% tax on LTCG and STCG, long-term capital gains and short-term capital gains. I can't have the Junjuna of Hindutva and beg to survive every day.
क्या लाइन मारी है अरुण ने, क्या लाइन मारी है मतलब। Wonderful, अरुण भाई ओपी। wonderful. अरुण भाई ओपी सीरियसली। बट अरुण भाई मान ओपी, गए ना, अरुण भाई के फाइनली मान गए। अरुण भाई के ट्विटर पे आप जाके पुराने वाले इनके ट्वीट देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये झुनझुना हिंदुत्व क्यों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं बता ना। नहीं, बेसिक भक्त थे ना, ऑफ कोर्स यस, आई मीन भक्त थे। नेम प्लेट में बहुत मजा आ रहा था, नेम प्लेट हो रहा, बुलडोजर हो रहा था, तो बुलडोजर जस्टिस हो रहा था, तो इसीलिए। नहीं बट नहीं, मान गए फाइनली कि झुनझुना ही है वो। हाँ झुनझुना ही। एटलीस्ट ही एडमिटेड। Yeah, and if he says it's Junjuna and this is the guy who was playing with it, he's a child. Right? I mean, like, Right. Yeah, I mean, like, तुम झुंझुना बोल रहे हो, तुम ही खेल रहे थे वो झुंझुने से, तो फिर तुम बच्चे हो, मतलब बालक बुद्धि हो। बच्चे नहीं है। That's also true. That means भी ना कि आप बच्चा समझते हो पूरी कौम को कि उनको पकड़ा दिया झुंझुना हाथ में। वही तो। बच्चे नहीं है, बंदर है ये। Yeah. बच्चे नहीं है, बंदर है ये। बंदर। हाँ बंदर हाँ भी तो बंदर है, नहीं मोदी जी होते। मदारी है, ये बंदर है। हाँ मोदी जी मदारी है, ये बंदर है, एब्सोल्युटली। Okay, continuing with more meltdowns, Nemo Yadav, our channel friend, has a good collection. So पहले तो ये Anshika Sharma. Guys, what bothers me about this the most is not the tweet itself, but that freaking handle. Look at this. Anshi ________________________ Why would you do that to yourself? Like एक तो क्या है ये? Like किसी को ढूंढना होगा तो ये क्या ___ करते बैठते हैं क्या? अंशी fill in the blanks. बट एक और खुशी की बात देखनी है तो देखो, फिर एक बार मोदी सरकार एग्जिट पोल्स 25K व्यूज। आई वोंट वोट फॉर दिस गवर्नमेंट अगेन इफ दे डू नॉट चेंज द फाइनेंस मिनिस्टर। 139K व्यूज। क्या बात है। देखो डिसेंट ऐसे ही चलता है, डिसेंट ऑलवेज सेल्स मोर, इसीलिए हम डिसेंट की दुकान खोल कर बैठे हैं। तो अब ये माना जाए कि आगे से ये ऐसे ही ट्वीट्स करेंगी अगर इनको ट्विटर से पैसे कमाने हैं तो। That's true. Quite That's possible. true. Quite possible. But तू जानता है क्या इसको अर्पित? शर्मा, ये भी शर्मा है, अंशिका शर्मा। I'm sorry, bad joke. तुम्हारे ही बिरादरी के लोग हैं ये अर्पित, मतलब थोड़ी तो शर्म करो। मैं तो बदल दिया उनको, बदल गए, सही रास्ते पे आ गए। Very good job. Done the good job. Yeah, done the good job. Arpit done the good job. Renuka Jain. Oh, this one I know. She's a CA, I think. Oh God, yes. We want to see a dictator Modi, period. Then she's like 8.5K views. 8.5K views. इसके नीचे views है 34K दिख रहा है। Middle class and salaried class get even less than freebies offered by states. Just increasing standard deduction by 25,000, but increasing LTCG to 12.5 and short term to 20%. Please do not treat us like beggars. You have lost all upcoming elections. ये वो कर्स कर रही है, मतलब इन्होंने यही हैंडल था जिसने ऋषि बाइगोटरी को रिप्लाई किया था उसके फेक क्लेम्स पे जो उसने एलटीसीजी पे फैलाया था। हैं एक सेकंड, वो भी एक है हमारे पास, एक बार वो खोल के देखते हैं। मुझे वो समझा नहीं, इसीलिए तू मुझे समझा दे वो अर्पित। ये रुकना इससे पहले एक सेकंड बस मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। इसके पहले वाला दिखा, बोल हाँ द पहले वाला जो है ना, वी वांट टू सी अ डिक्टेटर मोदी, शी पुट्स अ पीरियड full stop, which is called a period in like punctuation speak. Yes. And then she says period, but then she doesn't put a period after the period. Right. अर्पित सर, आप हमें ये एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ऋषि बागरी ने ये ट्वीट किया और बहुत आउटरीच भी किया क्रिएटिव्स पे। तो लोअरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स टू 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन विल गिव यू बिगर सेविंग देन 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन। अब ये इसने किया है कुछ, तो भी क्या किया है इसमें? ये वैसे तो ये आदमी पागल है। ऋषि गुड डिस्क्लेमर। हाँ ये सच में पहले भी कई चीजें मुझे तो ब्लॉक किया हुआ, जरूरत नहीं है फिर भी बोलो। मुझे तो इसने ब्लॉक किया हुआ है। एक बार मैंने इसको थोड़ा पता नहीं किस चीज पे एक्सपोज कर दिया था। मैंने लिखा था कि अगर मोदी जी हगेंगे भी ना तो ये उसको सब्जी समझ के खा जाएगा, इतना चाटता है ये। Oh no, that visual. मैंने इंग्लिश में लिखा था इवन इफ मोदी जी पूप्स ही विल ईट इट लाइक अ वेजिटेबल, ऐसा कुछ करके लिखा। ना इसकी बहुत अच्छा अंग्रेजी में शब्द है, इट्स कॉल्ड ब्राउन नोजिंग। या मतलब यू आर सो फार अप somebody's derriere that your nose has become brown because of obviously your association or your
proximity Yeah. to what comes out of the deal here. Yeah. So Brown knows it. So what you are Oh. saying? See, you learned So- again something new. या सो बेसिकली इसमें ना बड़ा एक एस्पेक्ट दिखाई गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, वो भी इसके बाद लगाना, या अगर हो सकता है तो साइड बाय साइड लगा लो, बेटर रहेगा। सो द थिंग इज कि पहले क्या होता था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। सो जो भी ये देख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मान लो कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी या गोल्ड खरीदा या कोई भी एसेट खरीदा जिसपे जो आपने काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रखा है, नॉर्मली 24 मंथ से ज्यादा, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो जब आप उसे बेचते थे, फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते थे, फॉर एग्जांपल अभी मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, कि आपने 2005 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख की, और अब आप उसको बेच रहे हो 18 लाख या 20 लाख पे, तो जो सेल वैल्यू है वो 20 लाख है, लेकिन जो परचेज प्राइस है वो 1 लाख नहीं माना जाता था। वो माना जाता था कि लॉजिक के हिसाब से आज की डेट में अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते तो क्या वैल्यू होती। तो ये लॉजिक, ये इंडेक्सेशन है बेसिकली लेमन लैंग्वेज में। अब उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक CII होता है, उस वो वैल्यू जैसे यहाँ पे 363 देख रहे हो आप, 363 और 100 क्या बेस वैल्यू है। तो 2001 का जो ईयर है उसके लिए बेस वैल्यू 100 है, फिर अलग अलग ईयर्स की वैल्यूज होती हैं। तो इन्होंने 24 की 363 ले रखी है इस टाइम, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। बट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें इग्नोर कर दिया है कि अगर किसी भी एसेट की रिटर्न लोअर है, लो रिटर्न है, उस केस में, जो कि एक्चुअल सिनेरियो होता है रियल एस्टेट में, उस केस में वो बेनिफिट, ये सेविंग होगी ही नहीं। अगर आप वो एग्जांपल लगाओगे जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, तो उससे और क्लियरली समझ आएगा। ये वाला ना? सो ये लोअर रिटर्न वाला सिनेरियो है। सो ये इसमें क्या, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की 2001 में, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2001 में कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, अबे भाई एग्जांपल की तरह समझ कि अगर उसकी वैल्यू 6%, अब इसमें ना अगर हायर रिटर्न है, मान लो 15% या 16%, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, मतलब रियल एस्टेट इतना अभी थोड़ी है कि इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लोअर रेट पे 6% पे एनुअली इंक्रीज हुई, 24 साल इंक्रीज की, उसकी वैल्यू पहुंची 4.17 करोड़। अब आप देखो इसमें अगर हम एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से चलें तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है उसका 3 करोड़ 63 लाख, और 20% लाइबिलिटी आती तो 10,80,000 का उसका टैक्स लाइबिलिटी बनती। अब नए रूल्स के हिसाब से वो फ्लैट, उसको जो उसकी सेल वैल्यू थी और इन 1 करोड़ माइनस होगा तो उसका जो टैक्स बन रहा है वो 28 लाख बन रहा है। तो आप देखो उसको मोटा मोटा 18 लाख एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ, वो पता नहीं किसी ने हाईलाइट क्यों नहीं की, प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो प्रॉपर्टी जब अब सेल हो रही है, उसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट मान लो 23 लाख के करीब हो गई। मैं एग्जैक्टली वो फिगर अगर मैं देख के बता सकता हूँ आपको बताता हूँ, मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट पे डाला था वो एग्जांपल, कि अगर किसी ने एक फ्लैट परचेज किया 10 लाख का, है ना, 2010 में, और 24 में उसको ऑफर आ रहे हैं वो फ्लैट के 18 लाख के या 20 लाख के, राइट, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती इंडेक्सेशन, मतलब वो जो परचेज वैल्यू बनती इंडेक्सेशन के साथ, वो बनती 20,84,000, मतलब यूजिंग जो CII है, मतलब जो रेट है 363 या जो भी यूज हो रहा है, ठीक है। आज की परचेज वैल्यू हुई 20,84,000 और उसको ऑफर आ रहा है 20 लाख का, हायर वैल्यू को बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर वो बेचेगा तो उसको 84,000 का लॉस हो जाएगा, वो लॉस बुक करेगा उस केस में। Correct. और वो अपना टैक्स सेव कर सकता, मतलब टैक्स देना ही नहीं है उसको, उस केस में जीरो टैक्स है, वो उसको सेट ऑफ करने के लिए सेव कर सकता है, उस टैक्स सेविंग हो जाती है, सेट ऑफ हो जाता है किसी दूसरे के अगेंस्ट, टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। बट अब जो नया रूल आ गया कि इंडेक्सेशन खत्म नहीं हो गया, नहीं, तो अब जो 20 लाख है उसमें से वो 10 लाख माइनस होंगे, तो सीधे सीधे 10 लाख पे उसको टैक्स लायबिलिटी होगी, तो वो टैक्स देना पड़ेगा। एक तो रियल वैल्यू में लॉस भी हो रहा है, बट उस पे वो टैक्स भी दे रहा है क्योंकि इंडेक्सेशन खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि अगर पुराने रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो लॉस है, तो उसको टैक्स नहीं देना। भले वो कह रहा है मैं तैयार हूँ लॉस बियर करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे लॉस नहीं। अर्पित, सो एक मैं थोड़ा सा, जस्ट टेल मी इफ आई एम करेक्ट व्हेन आई एम सेइंग दिस, राइट? आइडिया इज कि फ्लैट का वैल्यू 10 रुपये है अब 2000 साल में, तो अभी 2024 में उसका वैल्यू हो गया लेट्स से 20, डबल हो गया, राइट? व्हाट दिस इज सेइंग कि ये जो 10 रुपये जो तुम्हारा जो गेन हुआ है एंड जो बेचा है, तो वो काउंट नहीं होगा, अब तुमको ये पूरे इस पे टैक्स देना पड़ेगा।
लाइक पूरे 10 नहीं, रुपए नहीं। पे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, तो आप 10 को 5 कर लो और सेल वैल्यू 20 कर लो, ठीक है? हाँ। तो आपकी 15 का प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। सो ओके, सो 20 हो गया 2024 में, तो अगर मैं हाँ, बेच रहा sale हूँ value। उसको 22 रुपए में 22 में, तो मुझे वो 20 और ये दो पे टैक्स देना पड़ता था पहले, अभी मतलब पहले के रूल के राइट, हिसाब से। राइट, अब राइट। मुझे 12 पे देना पड़ेगा। अब आपको पहले अगर 10 रुपए वैल्यू थी और अब आपकी वो वैल्यू और आपकी सेल वैल्यू 20 रुपए है, ठीक है? सेल वैल्यू 20 रुपए है या 22 रुपए जो आप बोल रहे हो, और आपकी जो 10 रुपए वाली वैल्यू थी वो आज के टाइम पे 20 हो गई, राइट? तो 22 माइनस 20 आपको 2 रुपए का टैक्स, राइट? Got it. अब आपको 22 माइनस 10 पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी 12 पे टैक्स 12 पे टैक्स देना पड़ेगा। बट मुझे ऑल्दो टैक्स रेट लोअर है कि वो 20% देना पड़ता था, अब 12.5% देना पड़ेगा, वो ठीक है। बट वही चीज, अगर आपको लोअर रिटर्न का केस है, जो कि ऑब्वियसली होता है, रियल एस्टेट मार्केट स्लगिश होता है, गोल्ड्स में भी होगा, और दूसरी चीज इन केस ऑफ लॉस, वो दोनों केसेस अब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और सिर्फ एक हायर रिटर्न वाला जो केस है कि भाई 40% एप्रिशिएट हो गई चीज, 16%, 15%, 20% एप्रिशिएट हो रही है, बस उस केस में लगेगा। तो मुझे अब तो मैं एक बहुत सिंपल चीज हो गई है मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, मेरा आप बोल रहे हो कि मैंने 10 रुपए में खरीदा था 2000 साल में, राइट? अब मुझे 12 पे देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि उसका अप्रिशिएट हो गया, मुझे बेचना पड़ा 11 रुपए में 2024 में, और बाकी के जो पैसे हो मैं ब्लैक में ले लूंगा, क्योंकि मेरे को यही तो हो रहा है अभी, यही एप्रीहेंशन है कि ब्लैक मनी मार्केट बढ़ेगा। दूसरा, मैं ये जो सर्कल रेट पे बेचने लगेंगे लोग, कोई फेयर मार्केट जो रियल मार्केट वैल्यू उस पे बेचेगा ही नहीं। करेक्ट। तो वो चीजें हैं। और दूसरा, इन्होंने ना सिंपलीफाई कर दी कि ऐसी तैसी में जाए, नहीं करवा रहे कोई कैलकुलेशन, इंडेक्सेशन, ये वो। हमारे मोदी जी को नहीं आती कुछ समझ मैथ्स, सीधे सीधे प्लस माइनस कर दो। 20 में से 10 माइनस कर दो, 20 में से 10 माइनस कर। मुझे नहीं चाहिए कि मैं पहले बैठ कर लगाऊंगा। देश बेचने वाली बात है, देश अभी की वैल्यू इतनी है, अब इतनी वैल्यू हो गई, अब उसमें मैं इंडेक्सेशन करूं, तो बता प्लस माइनस करके कितना बैठ रहा है। मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या है, बट लाइक डिड एनीबडी एक्सप्लेन द लॉजिक as to why they are doing this suddenly? मुझे नहीं समझ आता कि इसकी क्या जरूरत भी थी। इन्होंने बस ये लॉजिक दिया है कि हम तुम्हारा ये जो टैक्स रेट है वो कम कर रहे हैं और इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर रहे हैं, तो एक लॉलीपॉप दे दी कि तुमने टैक्स रेट भी कम कर दिया। बट मुझे इसमें मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों किया है, जबरदस्ती की चीज है। ओके, एक और सीए शुभम अग्रवाल, वन ऑफ all the things that I love about #Modi government is that they don't make election budget a freebie shop. India would need to continue with this sensible budgeting for the years to come in order to rise as a superpower. अरे ये 2023 में बोला था इसने, and now I am voting for Congress in the next Lok Sabha election. Very nice. इसके व्यूज कितने हैं? इसके व्यूज कितने हैं? व्यूज देखो दिख इसके। नहीं रहा है नीचे अच्छे से, कटा हुआ है वो। बट मुझे काफी लग रहे हैं, 3.1 के से तो ज्यादा ही लग रहे हैं। हाँ, ज्यादा ही लग रहे हैं ऑफ कोर्स। मुझे बताओ, both of you, what is middle class? It's a big question which people have been debating over. अभी middle class है क्या exactly? क्योंकि technically तो निर्मला Saman is also man. I am a middle class woman. I also understand your pain. Technically she is also middle class. No, but Arpit, middle class? What is middle class? भाई ऐसे तो मतलब क्या डेफिनेशन दूं मिडिल क्लास की? जो हर समय रोता रहे वो मिडिल क्लास है अभी के लिए, तो यही लग रहा है। That's actually a decent definition of middle class. Because I remember, like, I have this. जिसको हर बार middle finger मिले वो middle class. Yeah. No, I have this acquaintance who basically is very rich, very rich. मतलब like weekend में Amsterdam जाके आते हैं type rich. Okay. पता नहीं अभी बजट के टाइम पे कंप्लेन कर रहे थे कि हाँ हमारे मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन एक ऐसे घुमा के उसको ना तमाचा मारते हैं उसके मुंह पे कि क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। तो मुझे ना कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मिडिल क्लास है क्या एग्जैक्टली, राइट? बिकॉज़ I think middle class is a mentality. मिडिल क्लास इज अ मेंटालिटी। Yes. I think it's a mentality. It's this because see your this super rich friend, वो भी एक समय में हो सकता है they might have grown up in houses like ours जहाँ पे सैलरी बजटिंग करनी पड़ती है और कितना पैसा किस चीज में खर्च होगा वो सोचना पड़ता है। गाड़ी लेने से पहले सोचना पड़ता है, घर लेने से पहले सोचना पड़ता है, डिस्कशन होता है, 2-3 बार देखा जाता है ब्रोकर कौन है, कितना परसेंटेज लगेगा, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है।
तो ऐसे सिचुएशन में जो बड़ा होता है या ऐसे उसमें बड़ा, तो वो उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्चा हो रहा है. पीपल हु नो वेयर देयर मनी इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इट इज गोइंग. Like the Ambanis. Lol. That's अरे शादी का किसी ने तो खर्चा रखा होगा ना, किसी ने तो रखा होगा. अबे ये न्यूज़पेपर वालों ने खर्चा रखा है उनका, लाइक न्यूज़पेपर वाले एस्टिमेट कर रहे हैं कितना शादी में दिया है. I swear to God, man. I swear to. So ना किसी मुझे तो ये लगता है जैसे like I digress, but just because we mentioned the Ambani wedding, एक बहुत अच्छा मुझको ट्वीट दिखा था, गरिमा ने लिखा था वो ट्वीट, ओके, एंड शी वाज लाइक कि यार मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी कि अंबानी की शादी के बाद कितनी सारी महंगी महंगी चीजें पड़ी मिली होंगी ना लोगों को सफाई में. That's usually happens, no? सफाई में तो you get stuff, किसी का कुछ खो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो कितनी महंगी महंगी चीजें मिली होंगी ना सफाई में. नीता अंबानी अपनी चप्पल भूल गई, गुच्ची की चप्पल है वो. हाँ एग्जैक्टली. शॉल छोड़ गया अपना, वो Chanel का शॉल निकल गया, फिर कोई बैग छोड़ गया अपना छोटा वाला पर्स जिसमें कुछ नहीं आता, ठीक, वो निकल गया प्राडा का. तो वही सारी चीजें था. दिस इज मिडिल क्लास, दिस इज द मिडिल क्लास. यू सी ऑल ऑफ दिस मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज व्हाट यू थिंक अबाउट. मुझे ऐसा लगता है कि जिसको सोचना पड़ता है ना कुछ करने से पहले, वो मिडिल क्लास है. मतलब कुछ चीज खरीदने से पहले या कहीं इन्वेस्ट करने से पहले या जो भी. क्योंकि देखो आप और हम सोचेंगे कि भाई ये महंगी चीज खरीदें या ना खरीदें, ये घड़ी खरीदें या ये घर खरीदें, EMI जाएगी, 10 चीजें सोचे जो मेड्यूसा ने बोला अभी, राइट. गरीब के पास ये ऑप्शन नहीं है और अमीर इस बारे में परवाह करता नहीं. तो बेसिकली मिडिल क्लास वही है जो फंसा हुआ है कि भाई हमें जिसे सोचना पड़ रहा है वो मिडिल क्लास है. गरीब सोचेगा नहीं. गरीब को तो अपने 2 दिन की बस रोटी मिल जाए उतना बहुत है, उससे ऊपर वो सोचता नहीं है. और अमीर को सोचने की जरूरत क्या है? अगर अमीर भी सोचने लगे तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी. अमीर को तो टैक्स में एग्जेम्पशन तो मिल ही रहा है, तो वो सोचेगा ही. बिल्कुल. अमीर तो सोशलिज्म की जिंदगी जी रहे हैं. बाकी हमारे लिए अमीर सरकार से सब्सिडी में जमीन मिल रहा है, सब्सिडी में टेंडर मिल रहा है, सरकार अपना टावर खड़ा करती है अपने BSNL के लिए, फिर उसके बाद जियो को बोलती है लो तुम यूज करो 80,000 टावर, तुम्हारे लिए बना दिया मैंने. अमीर ये सोच रहा है कि अमीर के पास ये टेंशन है कि वो सब्यसाची का लहंगा पहने या मनीष मल्होत्रा का पहने. एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसका कि मिडिल क्लास वो लोग हैं जो ट्विटर पे है. क्योंकि देखो अंबानी टाइप लोग तो ट्विटर पे है नहीं और गरीब भी ट्विटर पे नहीं है. लेकिन अगेन सी मिडिल क्लास मेंटालिटी. इतना सब कुछ दिखाने का और इतना सब कुछ करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि वो होना चाहते हैं. they want to be discussed. And you know why they will never be? Because वो ट्विटर पे है. It's circular logic, right? अंबानी जी शुरुआत से ही ट्विटर पे नहीं है, right? इसीलिए वो अंबानी जी है. Like धीरू भाई से लेके मुकेश से लेके अभी बच्चे भी कोई ट्विटर पे है नहीं. Last one. Now I can die peacefully. Lotus Party love. Narendra Das Modi love. दामोदर दास नाम भी नहीं आता. Look at her handle. Payal _trustable. और तो पायल शर्मा आरपी जानता है क्या तू? अरे भाई सब सुधर रहे हैं. सारे सीए सुधार दिए, सारे शर्मा सुधार दिए. Now Payal Sharma is like worst government I have seen in terms of tax issues. The worst F. Very interesting. But इनको हुआ क्या सडनली? देख पहले ट्रेडर है, प्राइवेटली चिल्लाते थे, अब ये पब्लिकली चिल्लाने लगे. ये डिफरेंस है क्या? अभी क्या था, इनको लगता था कि अब्दुल ठीक होगा, अब्दुल की जगह इनके एल लग गए क्योंकि ट्रेडर है वो. देखो ना उसके पायल शर्मा फिर ट्रेडिंग का बन रहा है. इट्स अ ग्राफ व्हिच इज गोइंग अप बिकॉज़ दैट्स अ ट्रेडर. हाँ वो आप देखो उसकी बायो में 100% ये कोई ट्रेडर वगैरह होगी तो इनके भी टैक्स वगैरह बढ़ गए. तो ये सब परेशान है इस टाइम. मजे बहुत शांति मिली मुझको देख के. मतलब हम ही नहीं रो रहे अब, हमारी ट्राइब बढ़ती जा रही है बेसिकली. हम तो यही बात हो गई यार, हम तो सही बोल ही रहे थे, तुम समझ ही नहीं रहे थे. ये वाली बात हो गई. मैंने जो कहा था ना शुरू में, जो वरुण बोलता है कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, चलो तुम्हारा बुरा हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है. So there was this tweet कि मोदी जी once got the title of the Great Divider because he created religious rift between people. Nirmala Sitharaman should get the title of the Big Uniter because she has made everyone cry together. So it's like इन्होंने ना, निर्मला सीतारमन ने, मुझे ऐसा लगता है ये बजट बना के ना इनकी दुबई की और US की और कनाडा की GDP बढ़ा दी है. मतलब गारंटी दे दी कि सब बाहर जाएंगे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ऐसी तैसी में जाए देश हमारा.
इनडायरेक्टली। एक तो बोल भी रही थी ना कि मुझे लग रहा है कि मैं दुबई चली जाती हूँ और ये वो दिस दैट। इवन आप देखो ना कि इतना रेशियो बढ़ रहा है बाहर जाने वाले लोगों का। यूएस में तो सब जानते ही हैं, कनाडा में है, ठीक है, यूके में है, टैक्स कम नहीं है, वहाँ बहुत टैक्स है वहाँ भी, बट स्टिल उसके बदले जो लोगों को मिलता है, पब्लिक फैसिलिटीज जो मिलती है, राइट, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फिर जब इतना टैक्स भी दो और तुम रोते भी रहो कि जी कुछ मिल नहीं रहा, सड़क पे पैर रखते ही पता नहीं कि नीचे जाएगा या सड़क पे रहेगा। ऑल्सो बाय द वे, इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं उसमें द फर्स्ट स्टेट इज गुजरात। But think about it this way. There is a big so for example, this is true about the UPSC, right? Which is like UPSC is an exam जो अगर आप दोगे और पास हो जाओगे तो आपका इंडिया में स्टेटस बढ़ जाता है, सो यू आर एबल टू एस्केप योर करंट रियलिटीज एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल लाइक इमीडिएटली, राइट? तो लोग इसीलिए मर के यूपीएससी की एग्जाम देते हैं एंड गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी चाहिए इसीलिए ये करते हैं, राइट? I feel like Gujarat में and states which have like this whole industrious character, their sole objective is to escape the country because पैसे क्यों कमाने आपको to get a better life, right? Which is always outside because हम वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में जाके सेटल होने का है सबको। अब देखो ना, हमारे अंबानी जी भी तो लंदन में ही रहते हैं ना हाफ ऑफ द टाइम, इन केस यू डिडंट नो। गाइस, आज हम निर्मला जी की लेटेस्ट रेसिपी से बजट का हलवा बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा बर्तन जिसको ठोक ठोक कर आप पूरे देश में अपने काम का ढिंडोरा पीट सके। फिर आप मेन इंग्रेडिएंट्स ले लें, जनता का खून पसीना, अमीरों की दलाली और मीठे के लिए शुगर फ्री कैपिटलिज्म। अगर आपको ज्यादा मलाईदार चाहिए तो थोड़ा फैशिज्म भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहले जनता के खून पसीने को अच्छे से उबाल लें, इसी से हमारी मेन प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। समय समय पर इसको हिलाते रहिए, नहीं तो प्रेशर ज्यादा बन जाता है। फिर इसमें गरीबों की मजदूरी को अच्छे से निचोड़ ले, इससे क्या है ना, अमीरों की शादी में रंग बढ़िया आता है। अब देखिए, इसमें डालेंगे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा और। क्या है ना, इसकी खुशबू से ही सब लोग खुश हो जाते हैं और हमारे दोस्तों को पता चल जाता है कि सबकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से घोल कर मिला लीजिए। ध्यान से करने की जरूरत है, वरना बेरोजगारी का धुआं आपकी आंखों में भी लग सकता है। अब हम इसमें कुछ जरूरी चीजें डालते हैं, जरा सा मनरेगा, थोड़ा सा हेल्थ, जरा सा एजुकेशन और चुटकी भर सोशल सिक्योरिटी। याद रखें, ये सब जितना कम डालें उतना अच्छा, लेकिन नहीं डालें तो गड़बड़ हो सकती है। आजकल मार्केट में रिन्यूएबल्स बहुत चला हुआ है, अडानी भाई को खास पसंद है तो थोड़ा सा रिन्यूएबल्स भी डाल देते हैं। देखिए, ऑलरेडी इसमें से हमारे राष्ट्रवाद की कितनी अच्छी महक आ रही है। आइए अब इसको गार्निश करते हैं। ओहो, मिडिल क्लास का टैक्स रिलीफ तो मैं फिर से डालना भूल गई। डालूं कि रहने दूं? चलो जरा सा डाल देते हैं। इसकी गार्निश करेंगे डिजिटल एआई और थोड़ा सा स्मार्ट सिटी से। स्मार्ट सिटी से अगर आप बोर हो गए हैं तो थोड़ा एआई डाल लें, बच्चों को बहुत पसंद आता है। एंड में स्वाद अनुसार इनसेंसिटिविटी डालें, मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं ज्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लें। तो देखिए, हो गया है हमारा हलवा तैयार। इसको देखते ही आपके मुंह से पानी गायब हो जाएगा और यही इस रेसिपी का मैसेज है कि अपना अपना देख लो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। That was nice. Nice creativity. Written very well. I liked. And also, मतलब थोड़ा छोटी-छोटी चीजें. For example, when she puts in infrastructure, all of it is empty. Like there is no infrastructure. Yeah. It's just a word. And development completely empty cup. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. मैंने उसको बोला कि it's very well written. It's very nice. She made a song also today and it was so bad. Like इतना खराब गाया उसने. मैंने उसको बोला बहन तू कितना गंदा गाती है. But it was good because it was so bad. So yeah. अच्छा लगा. Fun. Now final thoughts. Yeah, my final thought is about the budget. My reaction was कि निर्मला जी गाना गा रही थी, ये जो थोड़े से हैं पैसे उन पर टैक्स लगाऊं मैं कैसे। भाई फाइनल थॉट तो यही है कि अच्छे से काट दिया गया है। दोनों को पकड़ के
अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह, आगे भी कटेगा, इसकी गारंटी है ही। और जैसे जैसे मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं इतनी बजट पे, ठीक है, हंसी मजाक तो करते ही रहते हैं, वो एक अलग पार्ट है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये मेल्ट डाउन जो हुआ है, अभी तो मेल्ट डाउन बोल रहे हैं उसको हम, बट यही रियलिटी है और इसी रियलिटी पे स्टिक करना चाहिए कि जो गलत है उसको गलत बोलो। और खासकर ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात, ये तो ऐसी है कि तुम्हारे रोजमर्रा के खर्चे पे है। मतलब हमने वीडियो बना बना के हम थक गए बोल के कि भाई हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ये देखो कि उसके लिए अलग पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, 50,000 बच रहे हैं उस पे, जब पहले 20,000 बचते थे और अब 40,000 खर्च हो गए, सिर्फ 10,000 बच रहा है, तो वो सब बजट से ही जुड़ा हुआ है। और जितना हमारा यूथ है, जब तक जितना ज्यादा अवेयर होगा ना, क्योंकि अभी भी कुछ हैं बेवकूफ जो कमेंट करते रहते हैं कि गजवा हिंद हो जाएगा, बजट छोड़ो, ये वो, और जो मैं आपको वीडियो बता रहा था कि अखंड भारत बनाना है, कुछ नहीं होने वाला। असलियत बस ये है कि अगर तुम अब 25 साल के हो, 5 साल बाद तुम्हारी अगर शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, तो तुम्हारा घर चलाना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा दिमाग खोल लो, थोड़ा इन चीजों पे भी कंसंट्रेट करो जो हम बात कर रहे हैं या जो पब्लिक बात कर रही है। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कभी बजट पे डिस्कशन इन जनरल हुआ होगा जितना इस बार हुआ है। और उसका मेन कारण ये है कि लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ये हो क्या रहा है। मतलब हम कुछ और सोच रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। 10 साल हो गए यार, कितना पैसा दें इनको। पैसे पहले इनकम टैक्स देंगे, फिर उसके बाद पैसे बच जाएंगे, फिर हम कुछ मार्केट से खरीदने जाएंगे, उस पर जीएसटी दे देंगे, फिर कुछ पैसे बच जाएंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, फिर उस पर ही पैसा टैक्स देंगे। मतलब टैक्स ही देते रहो, फिर बचता क्या हमारे पास। इससे बेटर है भाई 20 लाख रुपए का लोन उठाओ, बाहर जाओ पढ़ाई के लिए, जैसा मास्टर्स करनी है, कुछ करनी है, या नौकरी के लिए बाहर जाओ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जियो, भले ही टैक्स ज्यादा हो। तो अगर इससे बचना है तो आइडियली चेंज द गवर्नमेंट। अरे सुनो, इससे पहले मेगा कुछ बोले, आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग। देयर वाज दिस गाय कॉल्ड समीर, उसका है एट है बेसुरा तानसेन, ओके। He had commented, F everything else. One team is thinking of Gazwa by 2047, because you said Gazwa, मेरे को याद आया. One team is thinking of Gazwa by 2047 and the other team is thinking साला सिर्फ 17,500 रुपए बच गया. Let's teach Modi a lesson. Remember, if Indy comes to power anywhere in any state, it is one more step closer to Gazwa-e-Hind. ठीक, ऐसा लिखा था। तो उसमें the Bhajapot guy, Rajshekhar, he commented, this is my favorite of all the memes which is there. He said, Modi ji थप्पड़ मारते हैं अंडे से, harder daddy. Okay. I thought anybody who is not melting down at this moment, especially right wing वाला, उनका तो यही है, मोदी जी थप्पड़ मारते हैं और जैसे harder daddy. एक वो मिथुन चक्रवर्ती का भी तो मीम था जिसमें वो पिटता रहता है, कहता है I love you, I love you, I love you. और लगे पड़े। मेरा एक ही एडवाइस है लोगों को कि बजट को इग्नोर करो, टाइम पास है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ठीक है, बट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी तुम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। आई एम सॉरी बट दैट इज़ द रियलिटी। सो अभी तुम्हारी भी कट गई है। द अदर थिंग इज़, आई फील लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल शुड डेफिनेटली चेक आउट इज़ द आउटकम बजट, जिसमें एसेंशियली आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम के बजट का क्या हुआ एग्जैक्टली, राइट? यू नो, प्रोमिसेस का क्या हुआ, वट का क्या हुआ। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट अब देखो, हम कितना भी कंप्लेन करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसे कोई बाहर निकल के हम में से ऐसे कोई एक, आई वाज थिंकिंग ऑफ अ मूवमेंट, राइट, वेयर एवरीबडी इज लाइक कि यू आर नॉट स्पेंडिंग आवर टैक्स मनी प्रॉपरली सो वी विल नॉट गिव यू टैक्स। ऐसे कोई मूवमेंट तो होने वाला है नहीं, राइट? हम डिलीजेंट मिडिल क्लास लोगों की तरह, अभी रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया तो मेरे पापा पैनिक मोड में चले गए, मेरी मम्मी भी पैनिक मोड में चली गई। एक कोई क्लियर टैक्स का फ़ोन आता रहता है कि प्लीज़ टैक्स भरिए, आज ही टैक्स भरिए, आपका रिटर्न डेट आ रहा है, व्हाटएवर। तो हम तो डिलीजेंट चोमू टाइप्स डरे हुए फटे हुए लोग हैं, वो तो हम टैक्स देंगे ही ना, क्योंकि डेडलाइन देख के तो हमारी फटती है, तो हम चिल्लाते रहेंगे। और गवर्नमेंट को भी ये पता है कि ये लोग, ये मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, ये मेंटालिटी जो सोचने वाले लोग हैं, एज अर्पित सेज, वो कुछ भी कर लो, उनके साथ हम कुछ भी कर लेंगे, टैक्स तो भरेंगे, ये टैक्स तो भरेंगे, डेडलाइन पे लाइक आंख रहेगा और फिर टैक्स भरेंगे, राइट? एंड अगर टैक्स नहीं भी भरेंगे
तो जीएसटी भरा देंगे उनसे, या फिर पेट्रोल टैक्स भर देंगे, या फिर और क्या 1000 टैक्स, इंडेक्सेशन हटा देंगे, जो भी करना है। यही बात है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जो है ना वो ऐसे इनफाइनाइट मनी वैक्यूमिंग मशीन टाइप है, राइट? बाहर क्या निकलता है? कचरा। अगर आप वैक्यूम क्लीनर का डब्बा खोलोगे तो कचरा ही निकलेगा ना उसमें से। दैट्स एसेंशियली व्हाट आवर स्टेटस इज लाइक टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू अर्पित फॉर बीइंग हियर, big thank you for being here. Thank you, Arpit. Thank you. And thank you nerd friends for watching this, and whoever is watching this video later, let me remind you that this is a members only recording that you are seeing as an edited video later. If you want to see the members only recording, then नीचे लिंक है, उधर से तुम कितना घंटा हो गया, 2.5 hours का रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अब वो वीडियो कितने का निकलेगा मुझे पता नहीं। एंड द अदर इज, इफ यू वांट टू सपोर्ट आवर वर्क देन प्लीज बाय मी अ कॉफी का लिंक है नीचे, प्लीज डू सपोर्ट इट। इफ यू सॉ माई वीडियो ऑन MPGA, द जायंट व्लॉग दैट आई डिड, where we went out and we gave questions to MPs and issues to MPs. The news is that MP ke officers are calling our team and asking for more. So we have made some sort of थोड़ा सा needle थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। Next time और बड़ा करेंगे, उसके next time और बड़ा करेंगे। 5 साल है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम सैटरडे या संडे को रखना ताकि मैं आ सकूं। सैटरडे संडे नहीं रख सकते ना मेडुसा। द प्रॉब्लम इज दैट MPs फ्लाई आउट ऑफ दिल्ली ऑन सैटरडे संडे बिकॉज फ्री फ्लाइट टिकट, वो भी तो हम टैक्स के पैसे दे रहे हैं और वो उड़ जाते हैं ना। व्हाई आर यू मेकिंग अ फेस? यू डिडंट नो दिस? हाँ, so let me tell you. Free flight ticket? Yeah, MPs have, I believe, 54 flight tickets for free in a year, and that is business class. Then why was Tejasvi Surya sitting in the premium economy? अब वो मुझे नहीं पता, नहीं मिला नहीं होगा, whatever it is. But also unlimited train journey free. ट्रेन जर्नी का मेरे को पता था, एरोप्लेन का नहीं पता था मुझे। बट द थिंग इज दैट रखना पड़ता है ट्यूसडे को, बजट डे के दिन, बिकॉज दैट वाज द ओनली डे ऑल MPs वेयर प्रोबेबली गारंटीड टू बी। मैं एक दिन छुट्टी लेके आ जाएगा, क्या है? एग्जैक्टली। मेडिसा, देशभक्ति करने के लिए, थोड़ा सिविक काम करने के लिए आप थोड़ा लीव लेके आ जाइए, ठीक है? लीव देंगे तो लेके आ जाऊंगी मैं। अर्पित, आप भी आ जाइए उड़ के। आएंगे, नवंबर में मिलते हैं। अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, नवंबर में मिलते हैं। बढ़िया, नवंबर में सेशन के टाइम पे आना, तो MPGA में आ जाना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, डन है, डन। चलिए, awesome guys. चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। Thank you for watching Dissent की दुकान, where decent people do dissent when the country is in a dissent. During times of dissent. Medusa, you messed it up. Messed it up. So useless. Anyway. Thanks for watching. Bye bye.